पॉर्न दिखाओ ना यार, पॉर्न तो दिख ही रहा है ना। पॉर्न इंडस्ट्री एक अलग इंडस्ट्री है। किसी कंपनी का सीईओ भी देखता है ये वीडियो और वो ही गेट्स एक्साइटेड। आज तमन्ना भाटिया से लेकर दीपिका पादुकोण, एवरीबडी शेडिंग ट्रिब्यूट्स एंड एवरीबडी शोइंग देयर बॉडी, एवरीबडी इज डूइंग दैट। Just because he is sleeping around with you, मेरे लिए project क्यों बनाएगा? Unless and until that he is not able to profit out of that particular thing. Nude photo भेज सकते हो? ये nude तो नहीं भेज सकती। आप face मत भेजना, आप face blur कर देना। अरे अगर आप क्लीवेज दिखा सकते हो सोशल मीडिया पे तो आप हमें फोटो क्यों नहीं भेज सकते? You just wanted to get into my pants. नमस्कार, आज फिर एक बार हाजिर हैं एक नई पहचान, एक नई हस्ती। इस वक्त वो नई हस्ती है जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर एंटरटेनमेंट में या सिनेमा में किसी को भी काम करना है, शिद्दत चाहिए, जुनून चाहिए। कॉर्पोरेट वर्ल्ड की 3-3 लाख रुपए की जॉब छोड़ के एक इंसान हिम्मत करके एंटरटेनमेंट में आ रहा है अपनी सोच को लेके कि मैं कर पाऊंगी। तो मिलते हैं अक्षया शेट्टी को अश्विता बख्शी के साथ। हाय अक्षया। हेलो जी। हेलो जी। स्वागत है आपका फिल्मी टॉक्स पर। सबसे पहली बात, हम मिले थे हेलो जी के सेट पे, राइट? हम हेलो जी के रिहर्सल्स पे मिले थे। हाँ, रिहर्सल्स पे मिले थे। एग्जैक्टली एंड वी वर सपोज्ड टू वर्क टुगेदर। Yes. बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस वी कुडंट। Some reasons better known to you. Yes. That we'll talk later. Yeah, but we had bumped into each other quite often, Yes, and we have. Majorly on sets actually. Yes. Majorly on Yes, sets. and you have worked really well since then. Yeah. I see you on Instagram. I see your body of work. It's just amazing. Thank you so much. I feel like blessed, and hard work is what has got me over here. Exactly. You are so fit. क्या करते हो? फिटनेस मतलब superb यार. I see your posts. You have perfect bikini body. You have perfect body for Indian wear. You have perfect body for print shoots. For any kind of shoot, you are perfect. तो ये perfection आपकी body में कहाँ से है? Blessed, and I think so I get it from my father because we both have a very high metabolism and we both are very lean. So it's all because of him, and that earlier I used to not work out that hard because metabolism अच्छा था. Okay. कुछ भी खाती थी मतलब पच जाता था, body में इतना लगता नहीं था. But now I really have to work hard to keep that body of mine. I don't have sugar. I don't eat meat. I have stopped alcohol, which I used to have occasionally. I work out like at least 6 days in a week. Wow. So these are the things that I have to do to get this body. अरे वाह. So हमें बताइए, first things first, आप एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस हैं. यू आर एन अमेजिंग एंकर, सुपर्ब. सो इससे पहले की अक्षया के बारे में हमें बताइए. इससे पहले की अक्षया was studious. इसके पहले की अक्षया was working in a corporate world. Okay. And I left all of that because life was very monotonous. और मुझे लगा कि थोड़ा सा challenge और थोड़ा सा exciting होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे धक्के खाने आ गई. आप मतलब you are born and brought up in Bombay? Yes, I'm born and brought up in Mumbai. I'm Okay. basically from Mangalore. So my parents are from Mangalore, but मेरी पैदाइश यही की है, मेरी schooling, मेरा college, सब कुछ यहीं पे हुआ. मैं मुंबई से बाहर कहीं नहीं रही हूँ, कहीं पे भी नहीं. Oh. और मुझे लगता भी नहीं कि मैं मुंबई से बाहर कहीं और रह सकती हूँ. Like आपका घर आपको मुंबई में ही चाहिए? घर, दिल, सब कुछ मुंबई. हाँ, you love Mumbai so much. Because I've never been comfortable anywhere outside Mumbai. So मैं मैंगलोर भी जाती हूँ, but just for vacation या फिर कुछ family के साथ कोई काम हो, कोई tradition हो हमारा. But I can't stay for more than 2 weeks over there. 2 weeks भी बहुत ज़्यादा हो जाता है. And मुंबई के अलावा किसी और शहर में रहने का सोचा नहीं. So I come from a corporate background, or that too from IT background, softwares. Okay. So we have a lot of opportunity to go to Pune or Bangalore or Hyderabad. मेरा तब भी मन नहीं किया. मेरे सारे दोस्त चले गए, colleagues चले गए, शिफ्ट हो गए, US चले गए, UK चले गए, तो मेरा कभी मन ही नहीं किया जाने का. तो फैमिली प्रेशर कभी नहीं आया कि बेटा आपको IT ही करना है? मेरी फैमिली शुरू से काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल और ऑर्थोडॉक्स रही है, तो उनका सिर्फ एक ही कंपल्शन था कि पढ़ाई करो, जो करना है
पढ़ाई करो, बट जो करना है उसका ऑप्शन कभी रखा नहीं, बस बोला पढ़ाई करो। सो इसीलिए ईमानदारी से स्कूल में पढ़ाई की, फिर कॉलेज में पढ़ाई की, फिर MBA किया, फिर उसके बाद कॉर्पोरेट जॉब किया, सब कुछ जैसे पेरेंट्स ने कहा वैसा किया। सोचा था यही लाइफ है, दिस इज द आइडियल वे टू लिव, बिकॉज फैमिली में से तो दूर दूर तक कोई भी इंडस्ट्री में है ही नहीं, so this part of world I was never aware of. So all I knew was that you have to study, you have to get a good job, and you have to settle in life. So this is what life is. This is what all we actually knew about. Yeah, वो तो अब है ना कि लोग कंटेंट क्रिएशन में जा रहे हैं, इन्फ्लुएंसिंग के लिए जा रहे हैं, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं। जब मेरी स्कूलिंग हुई थी सब कुछ सिर्फ जॉब लेना है, जॉब करना है, बस सेटल होना है। And commerce, science, arts होता था, right? Yeah, so I'm a commerce student, and then I did my MBA from Wellinkers. उसके बाद I joined a company as an HR. HR के बाद I got promoted into software sales. Software sales account management. So बस यही चला। कितनी पढ़ाई की और कितना आपकी सैलरी क्या रही होगी उस वक्त? मतलब जब मैंने शुरुआत की, जिस साल में पास आउट हुई वेलिंकर से, वो रिसेशन का टाइम था, सो आई डिड नॉट गेट अ वेरी गुड प्लेसमेंट। तो मैंने 1 साल किसी कंसल्टेंसी के साथ जॉब शुरू किया। 1 साल कंसल्टेंसी के साथ करने के बाद एंड आई जॉइंड इन अ वेरी बिग MNC। तो मेरा जो ग्राफ रहा है ना वो बहुत कम रहा था उस टाइम पे, क्योंकि जो मुझसे 1 साल बाद जो पास आउट हुए उनको अच्छा पैकेज मिला। मेरे टाइम पे पैकेज बहुत कम हो गया क्योंकि मैंने कंसल्टेंसी से शुरू की। तो अगर मेरा प्रमोशन होता था 20 to 30% और उनका प्रमोशन होता था 20 to 30%, तो उसमें ग्राफ में बहुत पे पैरिटी नहीं थी वहां पर भी। ये बोलने की बात है कि इंडस्ट्री में पे पैरिटी नहीं है, भाई कॉर्पोरेट में भी यही चलता है, वहां पे भी यही चलता है, ठीक है। बट हाँ, वहां पे उसको टैकल किया जा सकता है। यू कैन एनहांस योर स्किल, यू कैन वर्क रियली वेरी हार्ड एंड यू कैन रीच ऑन टू दैट लेवल। तो मैं 3-3.5 साल पीछे रही होंगी, बट आई जस्ट केम ऑन टू दैट लेवल। सो बाय द टाइम आई लेफ्ट माई कॉर्पोरेट जॉब, आई वाज लाइक अर्निंग प्रीटी वेल। ओके, मतलब लगभग 3 लाख तक होगा? हाँ, मतलब थोड़ा ज़्यादा है ना, ज़्यादा। ओह माय गॉड। तो मतलब आपके पेरेंट्स तो डेफिनेटली उनको लगा होगा ना कि मेरी बेटी 3 लाख छोड़ के एक ऐसी इंडस्ट्री में जा रही है जहाँ पे बहुत इनसिक्योरिटीज़ है, जहाँ पे कोई श्योरिटी नहीं है कि आपको इतना पैसा ही मिलेगा, एंड शी इज सो एजुकेटेड, आपने इतनी पढ़ाई कर ली बेटा, अब आपको ये क्यों करना है? They were never happy. They were never ever happy. आज भी मतलब अब पिछले 6 महीने से तो वो मुझे टोकते नहीं इस बात को लेकर कि मतलब आई शुड एक्चुअली गेट इनटू अनदर जॉब एंड ऑल, बिकॉज जब मैंने जॉब छोड़ा था अपना, मैंने 1 साल तक अपने पेरेंट्स को बताया नहीं कि आई हैव लेफ्ट माई जॉब, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। तो उन्हें लगता था, वो जब भी कॉल करते थे, सो पोस्ट लॉकडाउन, लाइक जैसे लॉकडाउन खत्म हुआ, मैंने डिसाइड किया कि आई स्टे अवे फ्रॉम माई पेरेंट्स even though they are from Mumbai. So मैं उनसे अलग रहती हूँ because I wanted to have my own place, I wanted to experience all of that. एक comfort level पे चले गए थे ना लॉकडाउन में कि मम्मी खाना बना रही है, तो यहाँ पे ना कॉन्फ्रेंस कॉल ना घंटों चल रहा है, कोई ब्रेक नहीं, कुछ नहीं, बना बनाया खाना मिल रहा है, तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं। तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ लॉकडाउन आई डिसाइडेड टू मूव आउट एंड स्टे बाय माई सेल्फ। सो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर था। तो मम्मी पापा जब भी कॉल करते थे, क्या हाँ तुम गई नहीं आज ऑफिस, या फिर तुम्हारा कॉल नहीं चल रहा कोई कॉन्फ्रेंस, अरे हाँ अभी चल रहा था, अभी हो गया। ऐसे ऐसे मैंने 1 साल निकाला झूठ बोलकर कि हाँ मेरी जॉब है एंड आई एम वर्किंग इन जॉब एज वेल एज आई एम डूइंग माई एक्टिंग। सो मैं दोनों भी कर रही हूँ। फिर कुछ ऐसा टाइम आया जब उन्हें बताना पड़ा कि 1 साल से मैं जॉब नहीं कर रही हूँ और जो भी है ये सिर्फ एक्टिंग और एंकरिंग के थ्रू हो रहा है, जो भी हो रहा है। इट वॉज अ शॉक फॉर देम। फॉर अनदर 6 months they used to continuously pester me कि no, this is the wrong decision that you have taken, you have to get back to work and all। क्या होगा? फिर पापा बैठे, कितना कमा लेते हो महीने में, कितना आता है, फिर कैलकुलेशन, पहले तुम्हें इतना आता था अब इतना कमा रहा है, कैसे करोगी, ये वो। Then they understood कि मतलब this is what makes me happy. Yeah. It is very important to be happy because when I was working in corporate, I never had a work-life balance as such. Even though I was earning too much, उन पैसों को खर्च करने के लिए, वो लग्जरी को एंजॉय करने के लिए टाइम नहीं था, सुकून नहीं था। जब छुट्टी मिलती थी तो पूरा दिन सोने में चला जाता था बिकॉज बॉडी इतनी टायर्ड थी, बॉडी से ज्यादा माइंड इतना टायर्ड था बिकॉज आई वाज इनटू सेल्स प्रोफेशन। तलवार हमेशा गर्दन पे होती थी, टारगेट पूरा करना है, ये अचीव करना है, वो नंबर्स अचीव करने हैं, मंडे रिव्यू मीटिंग है, नंबर्स बताने हैं, तो सुकून नहीं होता था। संडे को
पूरा दिन सो के निकलता था क्योंकि मंडे का प्रेशर आने वाला है, सैटरडे कैसे चला जाता था पता नहीं चलता था, कहीं बाहर मूवी के लिए चले गए, लंच या डिनर के लिए चले गए, दिन खत्म. So I was done with this thing and I thought like I want to live my life. पैसा जो बनाया थोड़ा कमाऊंगी लेकिन खुश रहूंगी. Exactly. उस पैसे को खर्च करने के लिए मेरे पास वक्त होगा. Right. तो लाइफ बहुत सुकून वाली वहाँ पर थी ये नहीं, but I had financial stability over there, but I never had peace. Today when I'm in front of camera, when I'm talking to people, when I'm going out, when I talk about my work, I just talk about it so proudly. But at the same time, when I meet people and they get to know about my corporate life, I talk about that work also very proudly कि मैंने ये achieve किया था, वो किया था, but वो कर लिया, वो life experience कर लिया मैंने. अब मैं ये life experience कर रही हूँ. See that you did because somewhere you knew your parents were right. Yeah. कि यार एक बैकअप होना चाहिए. Absolutely. Because I think हम बॉम्बे से, even I'm from Mumbai as I told you, लोगों को लगता है जो बाहर से आते हैं स्पेशली हमारी इंडस्ट्री में कि बॉम्बे वाले पेरेंट्स तो बड़े ही कूल होते होंगे, यहाँ के लड़के तो बड़े कूल हैं, बट ट्रस्ट मी दे आर नॉट. I tell you how many people from Mumbai have actually made it big in the industry compared to the ones who have come outside. It's always an outsider, the ones who have come outside Mumbai who has made or who him or her has made big in the industry. Because अगर मुंबई में हम उनको लगता है कि हमारे पास तो accessibility बहुत ज़्यादा है बॉलीवुड को लेकर, हम बहुत प्रोड्यूसर्स को जानते हैं, बहुत डायरेक्टर्स को जानते हैं, बहुत कास्टिंग को जानते हैं. जो मुंबई की पैदाइश है उनको पूछो कास्टिंग ऑफिस कहाँ है, कैसे इंडस्ट्री में आते हैं, उनको कुछ नहीं पता. नहीं, बिल्कुल नहीं पता. हमें तो हमारे पेरेंट्स को तो आई डोंट थिंक इवन आपके पेरेंट्स को ये पता भी होगा कि इंडस्ट्री अंधेरी में है. एग्जैक्टली नहीं पता होता है, बिल्कुल भी नहीं. मतलब द फैक्ट दैट एक्टिंग इज अ करियर, हमें तो लगता था ये उन्हीं का जॉब है जो इस फैमिली को बिलोंग, मतलब जिनकी फैमिलीज इंडस्ट्री में है उन्हीं के बेटे बेटियां इसमें जाते हैं. Absolutely. हमें तो सिर्फ कॉमर्स साइंस आर्ट्स पता था. I respect this particular thing, the ones who come out from outside Mumbai, Absolutely. the ones who make it over here, I have immense respect for them because वो 16, 17, 18 साल की उम्र में अपना घर वगैरह छोड़कर यहाँ पर आते हैं, स्ट्रगल करते हैं, and they make it. And they are the only ones who are able to make it. Why I'll tell you, because उनके पास वो सिक्योरिटी नहीं है, डू और डाई वाला सिचुएशन है. Yes. मैं 20-21 साल तक ना पढ़ाई कर रही थी, ठीक है, मैं पढ़ाई कर रही थी क्योंकि पेरेंट्स का था कि पढ़ाई करना है. उस उम्र में कोई राजकुमार राव या फिर कोई तापसी पन्नू है या फिर कोई तमन्ना है, वो स्ट्रगल कर रहे थे यार. वो इंडस्ट्री हर दरवाजा खटखटा रहे थे, ऑडिशन दे रहे थे, तो दे मेड इट रियली वेरी बिग बिकॉज दे हैड टू पे रेंट. They had to prove to their family that they are doing something right. Yes, मैं तो पढ़ाई कर रही थी, मुझे तो पता ही नहीं था इंडस्ट्री के बारे में. मेरे पास छत थी, मेरे को रोज खाना मिलता था, ओके, मैं सुकून से सो सकती थी, मुझे रेंट नहीं पे करना था, मुझे अपने खाने के बारे में स्ट्रेस नहीं लेना था, मुझे सिर्फ एक ही चीज का स्ट्रेस था, पढ़ाई करनी है, अपना एग्जाम क्रैक करना है. Yes. और बाद में मुझे स्ट्रेस लेना है, जॉब मिलेगी, वो सब कुछ बाद में की बात है. एग्जैक्टली माई पॉइंट. सो बाय द टाइम आपने फिगर आउट किया होगा कि यार आई वॉन्ट टू गेट इन टू एक्टिंग, आई वॉन्ट टू डू दिस काइंड ऑफ रोल्स, जो एक एज होती है ना, जो एक स्टीरियोटाइप है कि आप 16 या 18 में हीरोइन बन जाओ वरना इट विल बी टू लेट. आई थिंक वो हमारी एज निकल चुकी थी बिकॉज हम तब तक पढ़ाई कर रहे थे. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. और मैं आज भी ना मतलब रिग्रेट करती हूँ कि मतलब मुझे ना बहुत शुरू में आ जाना चाहिए था, पर मैं आ ही नहीं सकती थी शुरू में, नहीं आ सकती, पॉसिबल ही नहीं था. एग्जैक्टली. उस उम्र में तो मैं सोच भी नहीं रही थी कि मैं ऐसा कुछ करूंगी, तो वो जो निकल गया. अब उन रोल्स की तरफ मैं देखती ही नहीं, जो निकल गया. अब वो देखो जो तुम्हारे एज ब्रैकेट में जो तुम कर सकते हो, एग्जैक्टली, द वंस हु आर एबल टू डू दैट यंग रोल्स, उनको करने दो. हाँ बिल्कुल, उनको exactly. मैं कभी वो ऑडिशन देती नहीं हूँ वो वाले, ना मेरे पास वो रिक्वायरमेंट कभी आते, तो उस बारे में अफसोस जता के कोई मतलब बिल्कुल नहीं. यू हैड अ लाइफ दैट टाइम एंड द पीपल हु आर ऑडिशनिंग इन दैट पर्टिकुलर एज ग्रुप नाउ, they have not lived the privilege of life that you have led. So it's a privilege as well as they are the ones who are actually growing on set. बट जो लाइफ मैंने देखी है, जो लाइफ मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो उन्होंने नहीं किया है. दे माइट हैव गॉट द मैच्योरिटी बट दे हैव नॉट सीन डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड. अगर 16-17 साल की उम्र में उन्होंने इंडस्ट्री देखा है तो उनके लिए दुनिया इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के लोग हैं. जबकि मैंने बहुत कुछ देखा है बाहर. आई हैव मेट डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, डिफरेंट सेट ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट इंडस्ट्री.
सो आई नो हाउ पीपल आर. Yes. तो वो एक तरह के कुएं का मेंढक भी बन जाते. सो प्रोज एंड कॉन्स आर फ्रॉम बोथ द साइड्स. Absolutely. मेरे अलग कॉन्स है, उनके अलग कॉन्स है. राइट, एब्सोल्युटली. सो मुझे बताओ अक्षया, फर्स्ट रोल आपने कौन सा क्रैक किया था? मैं ऑडिशन के लिए गई थी, ठीक है, और वहाँ पे वो ऑडिशन तो मैं क्रैक नहीं कर पाई क्योंकि मैं किसी टीवीसी के ऑडिशन के लिए गई थी. बट वहाँ पे उस ऑडिशन रूम में देयर वाज दिस लेडी सिटिंग, शी वाज एन एक्टर. तब एक कास्टिंग चल रही थी एक शॉर्ट फिल्म की. Okay. मैं वहाँ से निकल गई क्योंकि मुझे पता था कि मैंने तो ये रोल मुझे नहीं मिलने वाला है. हाँ. गंदा ऑडिशन गया, निकल जाती हूँ. मैं निकली, वो मेरे पीछे पीछे भागी. उन्होंने कहा कि यू आर एन एक्टर, तुम्हारा जो लुक है, वी लुकिंग फॉर अ गर्ल समथिंग सिमिलर, हम एक शॉर्ट फिल्म कर रहे हैं. उन्होंने मुझे अंधेरी में यहाँ पे वो स्वदेश रेस्टोरेंट है वहाँ पर मीटिंग के लिए बुलाया. तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर वो एक ही बना था. बिठाया मुझे, बोला कि ऐसे ऐसे शॉर्ट फिल्म कर रहे. मुझे आज भी याद है, दशहरे के दिन वो शूट होना था किसी तबेले में, कहीं मीरा रोड या किसी तरफ किसी तबेले में वो शूट था, शॉर्ट फिल्म था. और दशहरा मेरे घर पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है. पिछले 25-30 साल से मेरे घर पे दुर्गा मैया बैठती है 9 के 9 दिन. Wow. तो बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है मेरे घर पे. और मैं दिन में गई हूँ ये सोच के कि मैं रात तक वापस आ जाऊंगी, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी, फिर जो मेन पूजा होगी, महापूजा होगी, वो होगी. अब मैं पूरा दिन शूट पे बैठी हूँ. मैं उनको बोल रही हूँ मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है. वो जाने ना दे. वो बोल रहे कि एक सीन बाकी है, दूसरा सीन बाकी है. इस स्ट्रेस में कि डैड अपसेट होंगे, घर वाले अपसेट होंगे कि ये काम मुझसे हो नहीं रहा है. मैं इतने घंटे बैठी हूँ, मतलब 16 घंटे तो कुछ हो गए क्योंकि सुबह 4-5 बजे मैं निकली हूँ. उस दौरान मैं कल्याण रहती थी, तो मैं कल्याण से गई हूँ मीरा रोड, ठीक है, और मुझे वापस जाना है कल्याण. मुझे बुखार आ गया ये सोच सोच के. घर वालों से कॉल आ रहा है मुझे, ओह शिट, और बुलाए जा रहे हैं. एंड बचपन से आई हैव नेवर मिस्ड दशहरा, पूजा मिस नहीं किया. मुझे खुद में जो गिल्ट है, मुझे बुखार आ गया. उस दिन वो शूट खत्म करने के बाद जो घर पे आए, डाटा वाटा मुझे खुद को भी बहुत बुरा लगा. तो मुझे लगा कि ये शायद से मेरे लिए नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगी. बट उस दिन मुझे रियलाइज भी हुआ कि टू बी एन एक्टर, an actor's job is not always to be on front of the camera, but waiting is our biggest job. Yes. You need to be patient, you have to wait. हम सेट भी पहुंच जाएंगे, हम वो रोल क्रैक भी कर लेंगे, हमें वो प्रोजेक्ट मिल भी जाएगा. बट अपने मेकअप रूम से, वैनिटी से निकल कर सेट जाने तक का जो पीरियड होता है, तुम्हें बहुत ज़्यादा पेशेंट होना पड़ता है. यू जस्ट हैव टू वेट. वी एक्टर्स आर नोन टू वेट. ये हमें सीख लेना चाहिए. तो तब मैंने बोल दिया नहीं करना मुझे. वो मेरा पहला प्रोजेक्ट था, वो मैंने किया. उसके बाद मैंने डिसाइड किया मुझसे तो नहीं होगा, मैं नहीं करूँगी. कुछ महीने बीते, फिर एक और शॉर्ट फिल्म आया. रोल्स मैं तब तक क्रैक ही नहीं कर पाई थी बिकॉज आई नेवर न्यू कि मैं किस तरह के रोल के लिए बनी हूँ. बिकॉज मैं हर किसी ऑडिशन के लिए चली जाती थी. ऐसे भी होता था मेरे साथ. मुझे मैसेज आया है कि आपको ऑडिशन के लिए आना है. मैं तैयार वैयार होकर आई हूँ. ऐसे तो थे ना, कैब करती थी, ट्रेन वेन से नहीं आती थी, ऑटो से कैब करके जाती थी. मेरा कैब उतरा ऑडिशन के लिए, ऑडिशन स्टूडियो के बाहर. मैं कैब से उतरी हूँ, 2 कदम चलकर गई हूँ और स्टूडियो है. तो स्टूडियो के गेट दरवाजे के बाहर जो भी असिस्टेंट या कास्टिंग असिस्टेंट खड़े होते, लुक एट मी एंड दे लाइक नॉट फिट. एंड आई वाज लाइक व्हाट, नॉट फिट, यू कांट ऑडिशन. मैं पीछे मुड़ के देख रही हूँ, कैब भी चली गई है. आई यू ऑल द वे कल्याण से अंधेरी, ये जानकी देवी पब्लिक स्कूल है उस तरफ पे जहाँ पर ऑडिशंस होते हैं, वहाँ पर आई यू ऑल द वे ऑडिशन देने के लिए. 2 कदम ही गई, उन्होंने बोल दिया नॉट फिट. और फिर दोबारा वापस कैब करो या फिर ट्रेन लो, फिर वापस कल्याण जाओ. ये ऐसा. तो नॉट फिट भी सुनना पड़ा. 11 महीने हर दरवाजे खटखटाए, हर ऑडिशन के लिए गई, हर किसी से मिली जिसने कहा कि आपको रजिस्टर करना है हमारे कास्टिंग ऑफिस में, तभी आपको रोल्स के लिए मैसेजेस आएंगे. आपको एक्टर बनना है, हमारी वेबसाइट पे रजिस्टर करना पड़ेगा, हमें इतना फ़ी देना पड़ेगा, ये है वो सब कुछ किया. जो कर सकती थी सब किया. फिर बाद में जब रियलाइज़ हुआ कि हाउ आई लुक, व्हाट इज़ माई प्लस पॉइंट, वेयर आई कैन फिट इन, तो टाइम लगा ये जाने के लिए. फिर अकल आई, ये ऑडिशन है नहीं करना, ये ऑडिशन ये आया नहीं करना है. फिर अपने आप को उस कैरेक्टर में देखने लगी कि मुझे लगता है कि मैं कर सकती हूँ, मेरा लुक बैठता है, तो मैं ऑडिशन दूंगी. अपना वक्त नहीं बर्बाद करूंगी. तो 11 महीने लगे ये जानने में. इमेजिन. और तब तक कितने ऑडिशंस दे दिए आपने? बहुत. और ये ऑडिशन पीरियड के दौरान कभी कोई नॉनसेंस बात किसी ने आपसे की कि एक्टिंग के?
प्लीज टेल मी। हर तरह के नॉनसेंस बात, मतलब मैंने तुम्हें काट दिया नॉनसेंस बात, किस तरह के नॉनसेंस बात की तुम बात कर रही थी? जैसे पैसे देने पड़ेंगे अगर आपको रोल चाहिए, मैंने कर दिया। यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज बिकॉज इंडस्ट्री में अगर बड़ी एक्ट्रेस बनना है तो आपको ये चीज़ तो गो थ्रू करनी पड़ेगी। देखो मैंने अपने आप को ग्रूम किया, आई यूज्ड टू नेवर लुक द सेम बिकॉज आई वाज वर्किंग इन कॉर्पोरेट, सो वहाँ का एक अलग कल्चर होता है। मैं सूट बूट पहनकर जाती थी, ठीक है, उसके बाद मैं वन पीसेस वगैरह पहनना या फिर कभी कुर्ता जीन्स पहनना, ये होता था, ठीक है। जैसे जैसे मैं करियर में अपने आगे बढ़ती गई कॉर्पोरेट में, तो मुझे स्ट्रिक्टली आई हैड टू वेयर सूट एंड ऑल प्रॉपर, उसके अलावा मैं मीटिंग के लिए नहीं जा सकती थी। तो वो मेरी लाइफ थी, मुझे उसमें मेकअप करना, हेयर करना, वो नहीं, तो बेसिक जो कुछ भी किया थोड़ा प्रेजेंटेबल दिखने के लिए बस। हाँ। अब कैसे जाते हैं ऑडिशन में तैयार होकर? आई वाज डस्की, आई एम स्टिल डस्की, बट नाउ आई हैव ग्रूम्ड माई सेल्फ, सो आई नो हाउ टू एनहांस माई डस्कीनेस, हाउ टू लुक ब्यूटिफुल। आई एम ब्यूटिफुल, वो मुझे अलग, वो अलग टॉपिक है, वो अलग बात करेंगे कि आई यूज्ड टू फील आई एम नॉट ब्यूटिफुल, बिकॉज मुझे बोला जाता था डस्की है, डस्की तो नहीं चलेगा, आप कभी मेन कैरेक्टर वगैरह के लिए आप कभी मत सोचना, आप मेन के लिए नहीं बने हो। तो वो मुझ में भी कमी थी बिकॉज आई टू नॉट गो दैट प्रेजेंटेबल। नाउ आई प्रेजेंट माई सेल्फ इन अ वे कि अब मुझे देख के लगेगा कि ओ वेरी ग्लैमरस शी इज, बट ये सब भी सीखा ना उस दौरान। तो क्योंकि मैं डस्की थी, because I was very lean and I had no godfather as such, I had no reference as such, so I was manipulated high time। और ये फीस पे करना वेबसाइट के लिए, ये सब कुछ बहुत होता था, और बोलते तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। फिर मैं सेल्फ डाउट पे होती थी, यार एक तरह से कोई मुझे बोल रहा है कि यार तुम खूबसूरत नहीं हो, तुम प्रेजेंटेबल नहीं हो, और दूसरी तरफ से ये कॉम्प्रोमाइज़ की बात कर रहा है, तो मतलब उसने देखा क्या मुझे? बिकॉज मैंने दूसरी दुनिया देखी है ना, सो आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट एंड आई हैड वन पॉइंट इन टाइम आई हैड 92 पीपल रिपोर्टिंग टू मी, ओके, सो आई हैड बीन ऑन दैट लेवल एज वेल। तो मुझे पता था ना, बट मेरे लिए नई दुनिया थी, ठीक है, मेरे लिए नई दुनिया थी। वो जो भी बोल रहे थे आई वाज जस्ट टेकिंग फेस वैल्यू पे, पर फिर अपना दिमाग लगाना शुरू किया कि कोई कॉम्प्रोमाइज करके मुझे अपना प्रोजेक्ट क्यों देगा, क्योंकि अगर जो भी प्रोजेक्ट बना रहा है वो अपना पैसा बना रहा है, पैसा बनाने के लिए, तो वो जस्ट बिकॉज ही इज स्लीपिंग अराउंड विद मी वो मेरे लिए प्रोजेक्ट क्यों बनाएगा, अनलेस एंड अनटिल दैट ही इज नॉट एबल टू प्रॉफिट आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। एग्जैक्टली, दिस इज ऑल्सो एन इंडस्ट्री ना। पहले ये इंडस्ट्री है, ये समझ में नहीं आता था, पहले ये सिर्फ ग्लैमर लगता था। अब पता है ये भी एक बिजनेस है, ऑफ कोर्स ये भी बिजनेस है। अगर कोई आज मुझ पे पैसा इन्वेस्ट करेगा, वो इसीलिए करेगा क्योंकि मेरी टैलेंट है, आई एम सेलेबल इन द मार्केट, मुझे 4 लोग देखेंगे, वो प्रोजेक्ट बिकेगा। If nobody is going to see me, nobody is going to like me, why is somebody going to invest on me? Exactly. मतलब या तो फिर वो आपको आपका फेस वैल्यू से कास्ट करेंगे, या फिर अगर वो ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे होंगे जहाँ पे आपका फेस उनको फिट लगेगा, तब कास्ट करेंगे। Absolutely. So ये सब जो कॉम्प्रोमाइज का नॉनसेंस है, दिस इज एक्चुअली नॉनसेंस। दिस इज एक्चुअली नॉनसेंस। देखो अब तो इंस्टाग्राम है, ओके, राइट, अब तो सबको सब कुछ पता है, अब जो फेक कर रहा है, जो सच बोल रहा है, वो सबके सामने आता है। यस, बट तब ये पॉसिबल नहीं था, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, जो बोल देता था। और आज भी ये होता है। मैं कल की बात बताऊँ, कल मुझे कॉल आया, मैं कैफ़े में बैठी थी फ्रेंड्स के साथ, मुझे कॉल आया, फ़ोन उठाते से ही बोलते हैं कि मैगजीन शूट है मैम, 1.5 लाख का बजट है, आप मुझे व्हाट्सएप पे हाय भेजिए। मैंने बोला कॉल आपने किया है, मैगजीन शूट किस मैगजीन के लिए शूट है, और कौन सा प्रोडक्शन है, क्यों कर रहा है, मैगजीन शूट क्यों हो रहा है, क्या है, थीम क्या है। और अगर आप मुझे बोल रहे हैं व्हाट्सएप पे हाय भेजिए, आपने मुझे कॉल किया तो डेफिनेटली आपके पास मेरा प्रोफाइल आया होगा। किसने आपको मेरा प्रोफाइल भेजा? आप मुझे हाय भेजिए, आप मुझे डिटेल्स दीजिए मैगजीन शूट के बारे में, फिर मैं आपको देती हूँ। उसने उसके बाद 3 बार दोबारा रिपीट किया, मैम 1.5 लाख का बजट है, 1.5 लाख का बजट है। फिर मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने बोला 1.5 लाख बजट, 1.5 लाख बजट क्या बोल रहे हो? 1.5 लाख बहुत बड़ी बजट नहीं है, बहुत बड़ी बजट नहीं है 1.5 लाख। तुम प्रोजेक्ट के बारे में बताओ ना। मैम आपको समझ में आता है कि मैगजीन शूट में फाइनलाइज होने के लिए आपको पिक्चर्स देने पड़ेंगे। मैंने बोला आपने मेरे पिक्चर्स नहीं देखे? बिना पिक्चर के आपने मुझे कॉल कर लिया, आप मुझे फोन पे बोल भी रहे हो कि 1.5 लाख का बजट है, आपने मेरे पिक्चर्स नहीं देखे, आप मुझे बोल रहे हो 1.5 लाख का बजट है। किस बेसिस पे? कैसे सिलेक्ट किया फिर? किस बेसिस पे? क्योंकि आज भी चलता है। और यू नो दिस इज वल्नरेबिलिटी। कुछ लड़कियां होती है जिनके पास प्रोजेक्ट्स नहीं है काम करने के लिए,
और हमें भी पता है कि इंडस्ट्री की हालत क्या है, किस तरह के बजट मिलते हैं हमें आज शूट के लिए। जस्ट 1.5 लाख बोलो तो कान खड़े हो जाते लोगों के, वो 1.5 लाख का बजट है, धना पिक्चर भेजा, ओके मैम हमको बिकिनी में पिक्चर चाहिए, चलो बिकिनी में भेजते। मैम हमें ना देखना आपकी बॉडी में कोई मार्क्स है या टैटूज है, तो आप क्या अपना एक न्यूड फोटो भेज सकते हो? अरे न्यूड तो नहीं भेज सकती, आप फेस मत भेजना, आप फेस ब्लर कर देना, हमें ना हर एंगल से देखना है, क्योंकि टैटू है आपकी बॉडी में, कोई बर्थ मार्क है या फिर कुछ है, बिकॉज ना ये बॉडी शॉट है ना, तो हमें ना क्लीन बॉडी चाहिए। तो लड़कियां करती है, बिकॉज आई हैव स्पोकन टू गर्ल्स हु आर वेरी नाइव, वेरी docile, they don't know anything, उन्होंने भेजे हैं पिक्चर्स, ओह शिट, ये सोच के कि यार बड़ा बजट है, मैगजीन शूट है, मुझे सिलेक्ट किया है, यार पहले क्राइटेरिया होगा भेजने का, उनको देखना होगा, तुम्हें देखना है। बॉडी मेकअप नाम की कोई चीज़ होती है, बड़ा सा बड़ा मेकअप आर्टिस्ट आजकल बॉडी मेकअप कर सकता है, टैटू हाइड कर सकता है, किसी भी तरह का बर्थ मार्क हाइड कर सकता है। अगर नहीं भी किया, फोटो शूट के बाद तुम एडिट कर लो, अरे फोटोशॉप कर लो। हाँ, तुम चेहरे से पिंपल्स हटाते हो, बड़े बड़े स्टार्स के इतने मार्क्स हटाते हो, इतना सा टैटू नहीं हटा सकते? तो ये क्या किंक है, मुझे आज भी समझ में नहीं आया। गॉड, व्हेन एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम, तो मैं आज बिकिनी में एक लड़की को देखना है, पहले की तरह तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है कि आप बिकिनी पिक्चर्स भेजो मैडम तभी सिलेक्शन होगा। इंस्टाग्राम पे जाओ, देयर आर गर्ल्स हु आर रेडी टू शो यू फ्रीली, उनसे पूछो ना, बिल्कुल उनके पास क्यों आना जिनको नहीं देना। बिल्कुल ऐसी लड़कियां है ना जो रेडी है ना, जो दिखा रही है इंस्टाग्राम पे, तो उनके पास जाना, उनके अकाउंट में फ्री है यार, उनके अकाउंट में जाके देख लो। नहीं ना, they want to be selective in that they want to also. see from the ones who don't show it, या फिर जिसने थोड़ा दिखाया और थोड़ा कुछ ज्यादा दिख जाए तो। हाँ, बट ये उसकी चॉइस है। सी टुडे व्हेन आई सी योर इंस्टाग्राम, आपने सिर्फ साड़ी में फोटोज नहीं डाली हैं, ठीक है, यू आर फ्लॉन्टिंग योरसेल्फ इन द बेस्ट वे यू कैन, ऑल काइंड ऑफ पिक्चर्स, चॉइस, राइट? आपको किसी ने नहीं बोला कि यार मुझे ऐसी फोटोज देखनी है, मुझे आप इसलिए कर रहे हो बिकॉज यू लाइक इट। सो दैट डजंट गिव एनीबडी द अथॉरिटी टू टेल यू कि लिसन, अगर आपने ये फोटो डाली है तो आप फोटो भेजने में क्या प्रॉब्लम है, बिकॉज दिस इज व्हाट आई हैव हर्ड। अरे अगर आप क्लीवेज दिखा सकते हो सोशल मीडिया पे, तो आप हमें फोटो क्यों नहीं भेज सकते? ये होता है। और देखो, जैसे कि तुम ये बोल रहे हो कि मेरे सोशल मीडिया, मेरे इंस्टाग्राम पे हर तरह की पिक्चर्स अवेलेबल है, तो हम क्या सोचते हैं, हम इंडस्ट्री में हैं तो इंडस्ट्री वाले भी इतने लिबरल होंगे, ठीक है, उनको पता है कि शी इज एन एक्ट्रेस एंड शी इज नोन फॉर हर ग्लैमरस रोल एंड एवरीथिंग, तो वो फ्लॉन्ट करेगी, एंड यू लुक एस्थेटिक इन दैट। हाँ, एंड सिंपल, वो फ्लॉन्ट करेगी। जो बंदा इंडस्ट्री में नहीं है, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ डिफरेंट वर्ल्ड, राइट, ओके, तो वहाँ के लोग इस बात को नहीं समझेंगे, ये मुझे ऐसा लगता था, ठीक है, Okay. वो लोग क्वेश्चन रेज करेंगे कि ओ यू आर ओनली फ्लॉन्टिंग, बट तुम्हें पता है दे आर द मोस्ट लिबरल पीपल, मोस्ट फॉरवर्ड पीपल। उन्होंने, मेरे जितने भी कॉर्पोरेट के फ्रेंड्स हैं, मेरे स्कूल फ्रेंड्स हो या मेरे कॉलेज फ्रेंड्स हो, उन्होंने आज तक कभी स्लीजी कमेंट नहीं किया मेरे बिकिनी पिक्चर्स पे, या फिर उन्होंने मुझे डीएम पे ये मेरे पिक्चर के नीचे ना कमेंट नहीं डाला, ओ वेरी हॉट पिक्चर अक्षया, सो हॉट, सो सिजलिंग। उन्होंने, अगर उनका मन किया है, उन्होंने कमेंट पे कमेंट किया है मेरे उस पिक्चर पे। सिर्फ इंडस्ट्री के लोग हैं, इंडस्ट्री के लोग हैं जो डीएम में आते हैं, बोलते ओ माय गॉड सच अ हॉट पिक्चर, सच अ सेक्सी पिक्चर, उनको शर्म आती है कि वो कमेंट पे लिखे। और यही लोग हैं जिनको मैं बोलूँगी ना, यार पीपल जज मी अ लॉट बाय लुकिंग एट माय बिकिनी पिक्चर्स एंड माय हॉट पिक्चर्स एंड ऑल। होगा ही ना यार, तुम अपना इंस्टाग्राम खोल के देख लो। मैंने बोली यार, ओनली रॉन्ग काइंड ऑफ व्हेन पीपल गेट अट्रैक्टेड टू मी, ओनली रॉन्ग अटेंशन आई गेट, देयर इज नोबडी हु जेन्युइनली वांट टू हैव अ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन विद मी। एवरी कॉन्वर्जेशन जस्ट गेट्स डाइवर्टेड टूवर्ड्स माय बिकिनी पिक्चर और माय हॉट पिक्चर्स एंड ऑल। होगा ही ना यार अक्षय, अपना इंस्टाग्राम ओपन करके देख लो, तुम्हारा इंस्टाग्राम ऐसा है तो फिर वो ऐसा ही होगा ना। अक्षया, मैंने आपका इंस्टाग्राम थोड़ा सा स्क्रॉल किया एंड ट्रस्ट मी, आई लव इट। आपकी हर एक फोटो में देयर इज सम स्टोरी बिहाइंड इट, चाहे वो आपने साड़ी में डाली हो या बिकिनी में। तो आपको क्या कमेंट्स आते हैं लोगों के उसमें? आई एम श्योर हर तरीके के कमेंट्स आते होंगे, डीएम में, कमेंट सेक्शन में। देखो, कमेंट सेक्शन में जो कमेंट्स आते हैं, आई लव इट। अगर तुम मेरे लिए हेट कमेंट भी डाल रहे हो, पर अगर मेरे कमेंट सेक्शन पे डाल रहे हो तो इट्स वेलकम। मैं अपने कभी कोई कमेंट्स डिलीट नहीं करती। अगर कोई वल्गर कमेंट है या फिर कोई हेट कमेंट है, मैं डिलीट नहीं करती, बिकॉज यू हैव गट्स टू कम एंड कमेंट ऑन माई पिक्चर रादर देन स्लाइडिंग ऑन माई डीएम।
जो मुझे कहते हैं ना मेरे दोस्त है, कुछ लोग हाँ. इंडस्ट्री वाले हैं, ओके, उनमें ना इतना गट्स भी नहीं है कि ना वो मेरे कमेंट के नीचे कमेंट कर डीएम पे पता है कैसे कमेंट्स आते हैं, ओह माय गॉड सो सेक्सी, सो हॉट, यू लुकिंग वेरी नाइस। यही सेम तुम कमेंट सेक्शन पे क्यों नहीं लिख सकते? तुम्हें मेरे डीएम पे आने की क्या ज़रूरत है? हिपोक्रेसी। हाँ, तुम जब वो डीएम करते हैं मुझे तो मैं रिप्लाई नहीं करती, ना लाइक करती हूँ, मैं तो अवॉइड कर देती हूँ, इग्नोर करती हूँ। यही चीज़ तुम मेरे कमेंट सेक्शन पे लिखो, आई विल आल्सो शो लव टू यू, देन आई नो दैट इट्स अ वेरी जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट दैट यू आर गिविंग। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा कोई कॉम्प्लीमेंट तुम पब्लिकली नहीं दे सकते तो मत दो। एग्जैक्टली। कमेंट सेक्शन पे अगर दे रहे हो तो इट्स अ पब्लिक कॉम्प्लीमेंट। तुम्हें खुद को पता है इट्स वेरी स्लीजी, तभी तुम मेरे डीएम पे लिख रहे हो ना। नहीं चाहिए, आई एम नॉट गोइंग टू एक्नॉलेज। एग्जैक्टली। आई लव गर्ल्स ऑन इंस्टाग्राम। वो बोलते थे ना कि मतलब अ गर्ल इज नॉट अ गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड। आज की तारीख में एक लड़की ही दूसरी लड़की को हाइप करती है। व्हेन द मोमेंट आई पुट अ पिक्चर, ऑल माई गर्ल्स दे कमेंट, दे हाइप यू अप। तुम भी जाते हो उनके पिक्चर्स पे हाइप करते हो, कमेंट करते हो। इसमें तो काफी सारी मीम्स भी बनी है ना, द मोमेंट यू स्टार्ट पोस्टिंग अ पिक्चर और एनीथिंग, योर गर्ल, ओह माय गॉड गर्ल, यू आर गॉर्जियस, यू ये यू वो। लड़के करें। मेरा दोस्त है बेस्ट फ्रेंड, उसको बेइज्जती करनी है तो डीएम में नहीं करता, वो उस कमेंट सेक्शन पे मेरी बेइज्जती करता है। वो सच्ची दोस्त है मेरा। बिल्कुल। तुझे लगता है तू 4 रुपये लगती है, तुझे लगता है तू खूबसूरत लग रही है इसमें, व्हाट वर यू थिंकिंग व्हाइल पोस्टिंग दिस? वो करता ही हैज गट्स, उसका दिल साफ है। ओके, एग्जैक्टली। बाकी लोगों की तरह नहीं। मैं उनको दोस्त ही नहीं मानती। तुम रिप्लाई नहीं कर रही हो, मैंने बोला तुम रिप्लाई करने जैसे कुछ कमेंट करो, हरकत जैसे लिखो करो। तुम हर लड़की के डीएम में हो यार, तो तुम अलग क्या बात है? एग्जैक्टली। मैं तो नहीं जाती किसी लड़के के डीएम में, मैं भी लड़कों के पिक्चर्स को लाइक करती हूँ, कमेंट करती हूँ, मैं नहीं जाती उनके डीएम पे, ओह माय गॉड सो हॉट, सो सेक्सी। मुझे हॉट सेक्सी लिखना, मैं उसके कमेंट सेक्शन पे लिखूंगी। एग्जैक्टली, बिकॉज वो कॉम्प्लीमेंट है। वो कॉम्प्लीमेंट है ना। जिस दिन तुम्हें लगता है कि वो कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तभी तुम मेरे डीएम में आ रहे हो, क्योंकि तुम्हें खुद को शर्म आ रही है। है ना? जिस चीज पे तुमको शर्म आ रही है वो करते क्यों वो हरकत? सही बात है। सो इंस्टाग्राम से आपको वर्क मिला है? देखो शुरू में लोग कहते हैं अपना इंस्टाग्राम बढ़ाओ। मैंने कभी अपना इंस्टाग्राम नहीं बढ़ाया। मेरा कभी 200K फॉलोअर्स पे जाता है, कभी 192K पे जाता है, 193 पे जाता है, बढ़ता है कम होता है, बढ़ता कम होता है। अगर मैं कभी किसी को बोलूँ ना यार मेरा बढ़ कम रहा है, वो तो तुम्हारे खरीदे हुए ना, मैं नहीं खरीदा है। अगर खरीदूंगी तो सीधा मिलियन बनाऊंगी। ये 100, 200, 5, 10 हज़ार फॉलोअर्स नहीं बढ़ाऊंगी अपने। अगर पैसा ही देना तो बड़ा पैसा दो और बड़ा प्रोफाइल बनाओ ना। मैंने नहीं बनाया। जब मैंने हेलो जी करना शुरू किया था मेरे 9,000 फॉलोअर थे, 8-9 हज़ार फॉलोअर थे। उसके बावजूद आई वाज कास्ट फॉर दैट पर्टिकुलर ओके। उसके बाद जब सीरीज रिलीज हुई तब जाके 12 का 20, फिर 22 ऐसे हुए। एंड ग्रेजुअली इन अ पीरियड ऑफ 2 years ऑर्गेनिकली अब वो 192K पे है, कभी ऊपर कभी नीचे होता है, बट है। बट तब बोलते थे अरे तुम्हारे इंस्टाग्राम के फॉलोअर नहीं है इसलिए हम तुम्हें कास्ट नहीं कर सकते। अब फ्रैंकली स्पीकिंग कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिसके इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स है ना उसको सिर्फ म्यूजिक वीडियो मिल रहा है। और फॉलोअर्स के बेसिस पे तुम्हें प्रोजेक्ट मिल रहा है ऐसा नहीं, अब कंटेंट क्रिएटर्स को प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। हाँ, ये मेरी शिकायत है। अब कंटेंट क्रिएटर्स को प्रोजेक्ट मिल रहा है क्योंकि उनका रीच है, ऑब्वियसली उनके फॉलोअर्स है, उनके व्यूज है, उनके रीच है, तो मेकर्स ऑल्सो नो कि अगर उनको कास्ट किया जाएगा तो प्रोजेक्ट भी बिकेगा, प्रोजेक्ट वुड आल्सो हैव व्यूअरशिप। हाँ, बट फॉलोअर्स के बेसिस पे आई डोंट थिंक सो। देयर आर ग्रेट एक्टर्स, गुलशन देवया, लाइक आई वाज डूइंग प्रमोशंस फॉर हिज अपकमिंग मूवी, उनके फॉलोअर्स मुझसे कम है इंस्टाग्राम पे। हाँ, फिर भी वो कर रहे हैं। Then I know a lot of South actors who are national award winning actors and who have constant work, regular work. उनके followers मुझसे आधा है। कर रहे हैं ना काम यार, जिनको काम करना है वो कर रहे हैं। हाँ, मेरे भी एस्पिरेशंस है कि मुझे म्यूजिक वीडियो करना है, ऐसे दुपट्टा फैलाना है, बिकिनी में ऐसे वो हीरो आ रहा है वगैरह, तो मैं भी शायद से बढ़ा लूंगी, बट अभी तक तो वो टाइम आया नहीं है। So, आपको जैसे अभी आपने कहा कि आपका वो मेन विजन नहीं है, बट फिर भी आपका मेन फोकस एक्टिंग है
Yeah, you're okay if you're earning good from Instagram. I am already earning from Instagram. So Okay. obviously I'm worshipping Instagram as well. Okay. It's just that I'm not in that race of increasing my followers. अगर organically मेरे followers बढ़ते हैं तो I'm very happy, okay? Okay. Because there are brands and who are wanting to collaborate with me on the basis of numbers that I have currently, जो मेरी viewership है उसके basis पे, और genuine collaborators है मेरे पास आज की तारीख में, and I'm getting paid. उतना नहीं जितना बाकी content creators, क्योंकि मैं शुरुआत में तो मैं सिर्फ एक्टिंग करने आई थी, Right. बट अब मैं एंकरिंग भी कर रही हूँ, Yes. और जब मैं दोनों नहीं कर रही होती हूँ तो मैं इंस्टाग्राम पे अपना टाइम स्पेंड Yeah, करती हूँ. why not? तो there's no problem. of course And not. I've never been against followers or Instagram. मेरे बढ़ नहीं रहे. जब आप न्यू आते हो इंडस्ट्री में, एट टाइम्स आपको कुछ काम फ्री में भी करने पड़ते हैं. आई हैव फेस दैट 6, 7, 8 years बैक. आई एम श्योर यू मस्ट हैव फेस दैट एज वेल. हाँ, मेरी जो पहली शॉर्ट फिल्म के बारे में जो मैंने बात की, मुझे सिर्फ कन्वेंस मिला था उसमें. मतलब मैं बीमार पड़ गई थी, घर वालों से गालियां पड़ी, वहां पे वेट कर रही हूँ, मुझे सिर्फ कन्वेंस मिला था उसका. वो फ्री में था. और अभी भी कभी कभार हो जाता है ना कि तुम्हें फ्री में करना पड़ता है, पर तुम कर लेते हो. व्हाई? बिकॉज यार इससे एक्सपोजर अच्छा होगा, या तो फिर कुछ कर नहीं रहे तो कर लो. बहुत कर लेते हैं. हाँ, बट जब हम इंस्टाग्राम की बात कर रहे थे तो इंस्टाग्राम पे भी ना कभी कभार ऐसा होता है कि किसी ब्रांड के साथ फ्री में कोलैबोरेट कर लेते हैं, बट वो फ्री नहीं होता, बिकॉज यू गेट प्रोडक्ट इन रिटर्न. वो प्रोडक्ट का वर्थ इतना होता है ना, तुम्हें लगता है हाँ चलो ठीक है डाल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता. एग्जैक्टली. मतलब अगर आप मेकअप बाय कर रहे हो, आप आउटफिट बाय कर रहे हो, सो दे कोलैब विद यू एंड दे गिव यू दैट एज अ गिफ्ट, एज अ सूवेनियर. या अच्छे सूटकेसेस से लेकर हैंडबैग से लेकर, देयर आर सम ब्रांड्स हु हैव गिवन प्रोडक्ट एज वेल एज पेड. Wow. Okay. Super. And then there are some brands, we are very new, if you would like to collaborate with us, we can't give you anything. और वो प्रोडक्ट चिपका देंगे. अरे वो प्रोडक्ट किसी काम का नहीं है तुम्हारे. किसी काम का नहीं है. मैं यूज करूंगी, उस चक्कर में कम से कम 10 लोग खरीद लेंगे, पर तुम्हारा वो प्रोडक्ट एक्चुअल में किसी काम का नहीं है, तो मैं क्यों करूँ? अच्छा, तो उसमें भी सोचना पड़ता है कि आप ऑफ कोर्स सोचना पड़ता है ना. कल को मैंने किसी प्रोडक्ट को एंडोर्स कर लिया, ठीक है, आई एम नॉट अ बिगेस्ट कंटेंट क्रिएटर और एन इन्फ्लुएंसर एट दिस मोमेंट, बट ये इंस्टाग्राम इज अ फुटप्रिंट, इंटरनेट फुटप्रिंट दैट यू आर लीविंग, राइट? तो कल को कोई भी खरीद सकता है इन फ्यूचर की, यार इन्होंने इस ब्रांड को प्रमोट किया था, ये तो फर्जी ब्रांड है, ये गलत ब्रांड है. Why to involve yourself or get associated yourself to something? अगर वो पेड है तो मैं पेड कोलैबोरेशन का वहाँ पे वो टैग लगाती हूँ, राइट, ठीक है, राइट. भाई मेरे को तो पैसे मिले थे. मैंने नहीं बोला था यार ये इसको इस्तेमाल करो, मेरे को पैसे मिले थे. यू आर अ इंटेलिजेंट व्यूअर, तुम्हें समझ जाना चाहिए. एग्जैक्टली. बस. ओह, सो अभी जैसे आपने खुद मेंशन किया दैट यू आर अ डस्की ब्यूटी, सो अगर आपको फेयरनेस क्रीम का कोलैबोरेशन आए, या फिर आपको बोले कि वो आप ये लगाइए और फिर आप मेकअप करके आप उसे दिखाइए कि मैं फेयर हो गई, तुम दो पैसे में कर लूंगी. अगर पेड कोलैबोरेशन डाल दूंगी, ओके, मैं डाल दूंगी. पर मैं वो मतलब वो झंडा वंडा लेकर नहीं घूमने वाली कि मतलब आई एम अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर थिंग. एवरीबॉडी इज टू सेल. देयर इज डिमांड, दैट्स व्हाई देयर इज सप्लाई. ठीक है, अगर तुम इतने स्मार्ट हो तो तुम पढ़ लोगे, यू विल रीड बिटवीन द लाइन्स. ओके, और बिकॉज मैं डस्की हूँ, एडिटिंग से मुझे फेयर दिखाया जा सकता है, पर मेरा जो दूसरा पोस्ट होगा या दूसरा वीडियो होगा उस पर तो मैं डस्की दिखूंगी ना. बेवकूफ तो नहीं बनोगे तुम. ठीक है, मैं डिस्क्लेमर जरूर डालूंगी. ओके, डिस्क्लेमर जरूर डालूंगी, दिस इज अ पेड कोलैबोरेशन और इट्स एन एड. तो समझ जाओ कि भाई मुझे पैसे मिले ये बोलने के. बिल्कुल. मैंने काफी सारे एड्स भी किए. मैंने विस्पर का ऐड किया है, मैंने बॉर्नवीटा का ऐड किया जहाँ पे मेरा 6 साल का बेटा है. ठीक है, तो इसका मतलब ये ना मेरा 6 साल का बेटा है. Exactly. और मैं अपने 6 साल के बेटे को बॉर्नवीटा पिला रही हूँ. रियलिटी में मैं नहीं पिलाऊंगी क्योंकि इट्स लोडेड विद शुगर. Exactly. बट इट्स एन एड, इट्स एन एडवर्टाइजमेंट. दैट डजंट मीन दैट आई एम प्रमोटिंग इट. ओके, बट डोंट यू थिंक एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन एक्टर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी मैं बोल रही हूँ ना, मैं एक डिस्क्लेमर डालूंगी जरूर कि इट्स एन एड एंड इट्स अ पेड कोलैबोरेशन. एड में नीचे स्टार मार्क करके आ ही हाँ, जाता है. देखो म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. उसके बावजूद हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट तो करते हैं ना. कोई बोलता है जाके म्यूचुअल फंड जैसा प्रोडक्ट है ही क्यों मार्केट में, वो तो बोल रहे हैं सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. तुम अपना दिमाग लगाओ. ठीक है, Bonvita tastes good. As a kid, I also used to have it. बच्चे को तो पसंद आएगा, उस खरीद के कौन लाएगा मार्केट से.
माँ या बाप, पेरेंट्स, हाँ हाँ ठीक है, तो तुम्हें पता है कि वो अच्छा है कि नहीं अच्छा है ना। अगर तुम्हारा बच्चा सर पीट रहा है, रो रहा है, सड़क पे हंगामे कर रहा है कि खरीद के ही दो, वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम कैसे उसको कंट्रोल करते हो। पर तुम्हें ऐसा लगता है कि यार ये तंग कर रहा है, खरीद के दे दो, वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम मुझे नहीं ब्लेम कर सकते उसके लिए, या किसी एक्टर या किसी स्टार को नहीं ब्लेम कर सकते क्योंकि आपने ऐड किया था, टीवी में हमारे बच्चे ने देखा और बोला कि भाई हमें लेके दो। नहीं, दैट्स व्हाई आई थिंक ये माइंडसेट है, तभी तो अ लॉट ऑफ एक्टर्स वो जैसे क्या कहते हैं उसे, रजनीगंधा हो गया, इस टाइप के कुछ कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो काफ़ी एक्टर्स ने उनकी एड में फीचर किया है, बट देन फिर ऑडियंस ने इतना ज़्यादा उनको परेशान कर दिया अपने कमेंट्स के साथ दैट सपोजिडली हमने इंटरनेट पे सुना था कि दे हैड टू पे देयर मनी बैक टू दैट ब्रांड बिकॉज लोगों को लगा हाउ कैन यू प्रमोट दिस। गलत बात है, गलत बात है। जब वही एक्टर हेलीकॉप्टर से कूदता है, आसमान में जो हेलीकॉप्टर चल रहा है, वाह 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 उसने किया, तुम्हें भी पता वो नहीं कर सकता, उस चीज को तुमने बिलीव किया, ठीक है, और तुमने फिर बाद में पीठ पीछे बोला भी यार वो क्या स्टंट करता है। कुछ लोगों ने बोला यार वो स्टंट नहीं है, उसके डबल मैन ने किया। कुछ लोगों ने कहा बॉडी डबल ने किया, या कुछ लोगों ने कहा कि यार वो उतनी ऊंचाई पे था नहीं, उन लोगों ने एडिट किया। तो जब वो ये ऐड कर रहा है तो तभी भी एथिकली सोचो ना, उसको तो पैसे मिले प्रमोट करने के लिए, तुम्हारा दिमाग नहीं है। और उस एड में कहाँ दिखा है वो दाने दाने, कहाँ दिखा है, मतलब वो जो भी है आज की तारीख में यू कैंट प्रमोट अल्कोहल। देयर वाज अ टाइम वेयर यू कुड प्रमोट अल्कोहल, एडवर्टाइजमेंट्स बनती थी अल्कोहल ब्रांड्स पे, एडवर्टाइजमेंट्स बनती थी सिगरेट्स पे। आज की तारीख पे वो बैंड है। नो अल्कोहल ब्रांड कैन प्रमोट और मेक एन एडवर्टाइजमेंट। तो उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया, सोडा। मैकडॉनल्ड्स नंबर 1 इट्स अ विस्की ब्रांड, उसका सोडा अवेलेबल है, ठीक है। ऐसे ही मतलब आई शुडंट बी टेकिंग द ब्रांड नेम, बट ऐसे 3-4 और अल्कोहल ब्रांड है जो प्रमोट अल्कोहल ही कर रहे हैं और ऑडियंस को भी पता है कि वो अल्कोहल ही प्रमोट कर रहे हैं टीवी पे, बट सोडा के नाम पे, ताकि एटलीस्ट वो ब्रांड उनके माइंड में रहे। एग्जैक्टली। तो जब ये लोग गुटखा या फिर ये सुपारी ये सब कुछ प्रमोट कर रहे हैं तो तुम्हारी भी तो अक्ल है ना कि नहीं खाना है। बिकॉज क्या हो जाता है, हम एज एन एक्टर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हो कि यार अगर मैं फेयरनेस क्रीम प्रमोट करूंगी या अगर मैं ये चीज़ प्रमोट करूंगा तो कहीं लोग मुझे एसोसिएट ना कर लें उस चीज़ से। बट डैम यू गेटिंग पेड फॉर इट, जस्ट डू योर जॉब। अगर मुझे ये नहीं करना होता तो मैं क्यों एक्टर बनी, मैं क्यों इन्फ्लुएंसर बनी। देयर इज अ रीजन दैट आई हैव कम इनटू दिस इंडस्ट्री ना। और सिर्फ एक्टिंग करके तो मेरा घर नहीं चलने वाला। ब्रांड्स की बदौलत इंडस्ट्री है और इंडस्ट्री की बदौलत ये ब्रांड्स है। और हम दोनों की वजह से आज FMCG इंडस्ट्री है और लोगों के घर पे बहुत सारी एसेंशियल चीज़ें हैं। राइट, ठीक है। तेल का भी आजकल 15 डिफरेंट ब्रांड्स आ रहे हैं। राइट। तो पहले एक ही किस्म का तेल हुआ करता था, अब किसी को राइस ब्रांड ऑयल चाहिए, अब किसी को लो कोलेस्ट्रॉल चाहिए, किसी को सनफ्लावर चाहिए, किसी को पीनट ऑयल चाहिए। वैरायटी दे रहे हैं ना हम। अब तुम्हें क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना, कोई कॉलर से घसीट के तो तुम्हें नहीं लेकर जा रहा है शॉप पे। तुमने ऐड देखा, तुम्हें जो पसंद आया तुमने वो लिया। राइट। हमने ऐड दिखाया, तुम्हें पसंद आ रहा है तो तुम खरीदो, नहीं पसंद आ रहा है मत खरीदो। राइट, यही चीज़ है ना। कोई तुम्हारे घर पे जाके तो तुम्हें नहीं खींच रहा। नॉट एट ऑल। सो हम हमेशा से देखते आए हैं कि एक्ट्रेसेस के रोल्स बहुत छोटे होते हैं काफ़ी फिल्मों में। जब तक कि वो एक वुमेन ओरिएंटेड फिल्म नहीं होती उनको बहुत ज़्यादा काम करने नहीं दिया जाता है। या तो कैरेक्टर रोल्स होते हैं या फिर आप पेड़ के आसपास डांस कर लो, ऐसे कहा जाता है। सो अभी OTT आ गया है। OTT में भी हम देखते हैं कि वो फाउल लैंग्वेज यूज़ कर रही हैं, वो सेक्स के लिए उनके सीन्स जो भी सेक्स सीन्स होते हैं उसके लिए उनको ज़्यादा एक्सपोज किया जाता है। सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? आई थिंक सो द एक्ट्रेसेस हु आर डूइंग दिस आर प्लेइंग वेरी स्मार्ट। जैसे तुमने कहा कि बेसिकली उनका स्कोप बहुत कम होता था फिल्मों में क्योंकि बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती थी एक्ट्रेसेस को। देन दे यूज्ड टू शो एज एन आइडियल फिगर, ओके, जो गर्ल नेक्स्ट डोर हो, जो शर्माए, पेड़ के इर्द गिर्द रहे, या फिर कोई गुंडा आ रहा है उनको छेड़ रहा है तो हीरो जाएगा बचाने के लिए। सो दे वर हेल्पलेस, दे ऑलवेज सीक्ड हेल्प समवेयर एल्स। तो उस बेसिस पे अगर आज की कैरेक्टर्स अब देखो
तो दे क्वाइट डिपेंडेंट, दे वेरी पावरफुल, वो खुद के लिए Yes. लड़ना जानती है. Yes. तो व्हाई आर पीपल सीइंग ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ इट? पहले तो उनको डैम्सल इन डिस्ट्रेस दिखाया जाता था. Right. आज वो ऐसे ही कि वो हीरो को पीछे कर ले, बोले कि मैं खड़ी हूँ, हाँ. आई विल फाइट फॉर यू. Yes. So they are also showing them capable, and this is because of those few actresses who have agreed to portray that characters on screen. जिस किसी ने भी शुरुआत की इस चीज़ की, राधिका आप्टे हो या फिर रसिका दुग्गल हो, ठीक है, it took a lot of courage, right, for them to Right. agree to do this particular thing. Right. They were trolled badly. आज सभी को वो करना है. बिल्कुल. पहले लाइक पास्ट फिल्म अगर याद है राधिका आप्टे का, शी वाज Superb. ट्रोल्ड बैडली फॉर डूइंग दैट पर्टिकुलर रोल. आज तमन्ना भाटिया से लेकर दीपिका पादुकोण, एवरीबडी शेडिंग ट्रिब्यूट्स एंड एवरीबडी शोइंग देयर बॉडी, एवरीबडी इज डूइंग दैट. Exactly. हम नहीं करेंगे. तुमने कहा तो तुम नहीं करोगे, तुम अब कर रहे हो. क्यों? बिकॉज यू वांट दैट मच ऑफ स्क्रीन टाइम. आज तमन्ना भाटिया एक पूरी फिल्म में सिर्फ एक गाना करती है, बट फिर भी शी इज कॉल्ड फॉर प्रमोशंस. पहले कोई एक्ट्रेस अगर कोई आइटम नंबर करती थी, जब फिल्म का प्रमोशंस होता था, फिल्म का लॉन्च होता था, बुलाया जाता था उसे ट्रेलर लॉन्च पे, प्रमोशंस पे नहीं बुलाया जाता था. शी यूज्ड टू जस्ट डू वन नंबर एंड शी यूज्ड टू वैनिश. आज बड़ी सी बड़ी एक्ट्रेसेस एक फिल्म में एक आइटम सॉन्ग कर रही है, बट पूरा का पूरा प्रमोशन उस एक्ट्रेस के इर्द गिर्द घूमता है. उन्हें बकायदा बुलाया जाता है, उनसे प्रमोशन किया जाता है. सो दैट इज द काइंड ऑफ एन इम्पोर्टेंस दे हैव बीन गिवन. And these female have agreed to do that, and I respect them for that. हाँ, इसके side effects भी है with those sleazy OTT platforms that has come up, which is only and only showing that. यार porn है ना यार, porn है ना, porn दिखाओ ना यार, porn तो दिख ही रहा है ना. porn industry एक अलग industry है. तुमको film और series में porn क्यों mix करना है? आज की तारीख में अगर मिर्ज़ापुर में कोई scene है which requires them to do those kind of sexual acts, humping, thumping, तो वो ज़रूरी है इसलिए डाला है. But there are certain series जहाँ पे जानबूझ के डाला जाता है. There are certain stories जहाँ पे स्कोप है उसके बावजूद नहीं डाला गया है, because उसके बिना भी कंटेंट के बेसिस पे तुम्हारा प्रोडक्ट बिक सकता है. The day you feel that your content is not strong enough, your story is not strong enough that it will touch people's heart, that's when you would require these kind of scenes. और लोग भी ना कुछ टाइम के बाद बोर हो जाएंगे सीन्स देख देख के. बिल्कुल. लोग बोर हो जाएंगे. लोग कितना देखेंगे. एज आई टोल्ड यू, इंस्टाग्राम पे फ्रीली अवेलेबल है, पॉर्न साइट्स में सब कुछ फ्रीली अवेलेबल है. फिर बचा क्या देखने के लिए? जब सब कुछ देख लिया और एक एक्ट्रेस में सब कुछ देख लिया, मल्टीपल सीरीज में इन डिफरेंट एंगल शी हैज शोन हर बॉडी और डिफरेंट एंगल्स में शी हैज प्रेजेंटेड दो सेक्सुअल एक्टिविटीज, तो अब बचा क्या देखने में? बट एक चीज़ और अक्षया, जब हम ये एक छोटे प्लेटफॉर्म पे देखते हैं एक एक्ट्रेस को करते हुए, हम बहुत जल्दी जजमेंट पास कर देते हैं कि यार बहुत ख़राब है. बट हम वही चीज़ अगर एक बड़ी फिल्म जैसे एक एनिमल जैसी फिल्म में देखते हैं, जहाँ पे एक एक्ट्रेस ने क्लोथ्स नहीं, रिलेटिवली वैसे क्लोथ्स नहीं पहने हुए हैं एंड शी इज़ शोइंग हर बॉडी, सो वी थिंक कि यार ये तो एस्थेटिकली शूट किया गया है, ये तो बड़ी फिल्म है, यहाँ पे तो मना नहीं करेगी एक एक्ट्रेस. तो ये इतना डिफरेंस क्यों? I'll tell you, because it is shot aesthetically. People, producers, directors, casting, while they are casting for these kind of scenes, they use word aesthetically. But only handful of people know what's the meaning of aesthetics. Yes, actually. Aesthetically इनको ना एक वर्ड मिल गया, जैसे कि कंगना रनौत ने नेपोटिज्म करके नए वर्ड से इंट्रोड्यूस कराया सबको. एस्थेटिक एक नया वर्ड मिल गया, हर कोई यूज कर रहा है. आज की तारीख में मुझे एस्थेटिक का मतलब क्या है? ओनली अ सिनेमाटोग्राफर और अ डायरेक्टर कैन यूज दीज वर्ड्स लाइक एस्थेटिक. अ कास्टिंग डायरेक्टर, अ क्रिएटिव हेड, okay, a makeup artist, a cameraman, a lightman cannot use these words. Sorry, not for saying cameraman. They can't use these words as aesthetic. तुम्हें पता है क्या? एक well read, well educated और an experienced cinematographer, okay, उनकी भी डिग्रीज होती है. उन्हें पता है कि कैमरा का कौन सा एंगल है जिसमें बॉडी अच्छी दिखेगी. तृप्ति डिमरी in Animal, okay, even though she was naked, bare body, उसका कोई प्राइवेट पार्ट विजिबल नहीं था. ओनली स्किन वाज विजिबल. वो उतना ही स्किन विजिबल था, अगर वो बिकिनी पहनती तो भी उतना ही उसका स्किन विजिबल होता. शी वाज कवरिंग हर, ओके, हर प्राइवेट पार्ट वाज कवर्ड. At the same time, if a bustier girl would have done that particular scene, okay, there is no way she could have hidden her.
like today people approach me for these kind of role and I don't hesitate doing that, but there's a limit. I tell them that I'm bustier, okay, so there are certain scenes that I won't be able to do because it will look vulgar. तुम किसी भी तरह से shoot करोगे, तुम aesthetic बोल लो, तुम बोलो hide कर दोगे, but because my body is not supporting, there is a type, a girl who's lean, who's not that busty, when she is doing those kind of a scene, it will not look vulgar. But when a girl who's heavy on bust, if she is doing that scene, वो same scene, same cameraman, same angle में वो vulgar दिखेगा. It's body to body. वाओ, इतना सोचना पड़ता है. सोचना पड़ता है. तुम्हें अपनी बॉडी के बारे में पता ना, जब ये छोटे छोटे OTT प्लेटफॉर्म्स की जो तुम बात कर रही हो, वल्गर क्यों लगता है? Girls are out of shape. The angle it has been shot. The parts which has been emphasized. अगर जांघों पे है तो जांघों से धीरे से ऊपर उठाया जाएगा कैमरा, ब्रा का हुक खोला जाएगा, ब्रा को धीरे से निकाल. ये एक्ट जल्दी भी हो सकता है, तुम्हें उसको स्लो मोशन में क्यों करना है? एनिमल में ऐसा कुछ दिखाया नहीं. फिर भी लोगों को वो एनिमल में तृप्ति डिमरी में बेयर बॉडी नेकेड, कहीं पे भी कुछ वल्गर नहीं, कुछ वल्गर नहीं, कुछ वल्गर नहीं, एग्जैक्टली कुछ वल्गर नहीं था उसमें. She performed an entire sexual act, but कुछ वल्गर नहीं था. भूमि पेडनेकर in Lust Stories 1, she had a scene. She played a maid. Yes. She was a maid and she had a proper sexual activity. Okay, guy was on top of her, she was below, and a proper humping thumping scene was there. हमें क्या दिखा उसमें? भूमि पेडनेकर के 2 हाथ और 2 टांगे, बाकी कुछ नहीं. It was a proper sexual activity but shot so nicely. कोई body part उसका दिखा नहीं. Okay. Message भी convey हो गया and at the same time it's not vulgar also. Lust Stories 2 में अमृता सुभाष, okay, तिलोत्तमा शो और उसके husband के साथ there was a scene that was enacted. Okay. Proper sexual scene was done. Only their face is visible. Even though they are performing that act, their body is not shown. Through their face it is shown that they are doing that activity, not through the body. Not through the body. But ये छोटी छोटी OTT प्लेटफॉर्म क्या करती है? वो बॉडी दिखाती है, तो it's not called aesthetic. Okay. True. मेरा एक प्रिंसिपल है, I will not wear lingerie on screen. बिकिनी पहना, जितना बिकिनी पहनाना है पहना. Because for me, the moment you make me wear lingerie and you want to perform those kind of an activity, it becomes very personal and vulgar. वेरी पर्सनल एंड वल्गर. और ये छोटे छोटे OTT प्लेटफॉर्म में वही करते हैं, ये लॉन्जरे पहना देते हैं. ये तुम्हें कोई बहुत ही अच्छा वेल फिटेड कोई लॉन्जरे भी नहीं पहनाएंगे, वो चड्डी पहना देंगे, वो गंदी सी ब्रा पहना देंगे, क्योंकि दे आर केटरिंग टू दैट काइंड ऑफ एन ऑडियंस ना. ट्रक ड्राइवर्स, ऑटो वाला, हम बोलते ट्रक ड्राइवर्स, ऑटो वाला, आई टेल यू, किसी कंपनी का CEO भी देखता है ये वीडियो और वो ही गेट्स एक्साइटेड बिकॉज दैट्स रॉ फॉर हिम. And it's a sexual act. Porn sites में क्यों नहीं जाते ये लोग? क्योंकि porn site में they show it so fantastic कि girl is having a proper body, well toned body, she's wearing perfect clothes, घर perfect है, the guy that she is performing that act वो perfect है, abs है उसके, he's tall, it's too perfect for them, so they're not excited. So they can't relate to. They can't relate to. So they want something which is not perfect. जो वो relate कर सकते हैं. आदमी की तोन आई हुई है, मोटा है, गंजा है, बुढ़ा है, लड़की मोटी है, healthy है, bulky है, voluptuous है. So this is the realness that they are showing. तब जाके तो vulgar होता है ना. अब रणवीर कपूर के कहाँ तोन आए हुए? नहीं आया. तृप्ति डिमरी is quite lean, nice body. लोगों को वल्गर लग रहा है, मुझे तो बहुत सेक्सी लगा. किसी भी एंगल से वल्गर नहीं लग रहा. बिल्कुल नहीं, इनफैक्ट बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी वल्गर नहीं है यार. बॉडी देखो कितनी प्यारी है उसकी, शी इज फिट. दिस इज अ नाइस पॉइंट यार, ये मैंने कभी सोचा नहीं. देखो अगर मैं फिट नहीं होती ना, अस्मिता मैं सच बता रही हूँ, इफ माय बॉडी इज नॉट टोन्ड, ओके, इफ आई एम नॉट फिट, आई वुड नॉट डू दोज रोल्स. या बिकॉज देन इट विल लुक चीप. It will look cheap. It will definitely look cheap. But today I have worked on my body. मेरे हर एक इंच toned है, तो वो गंदा नहीं दिखता स्क्रीन पे. True, very true. और मैं नहीं करूँगी. जिस दिन मुझे लगेगा मेरी बॉडी अच्छी नहीं है, बहुत गंदी हो गई है, तो चर्बी और भी जमा, मैं नहीं करूँगी सीधी. मैं नहीं करूँगी. बिल्कुल राइट. सो आपने साउथ में भी काम किया है, वहाँ तो थोड़ा वॉलप्शियस एक्ट्रेसेस ज़्यादा चलती हैं, राइट? हाँ, बट लेकिन मेरे को मिल तो रहा है वहाँ पे. जब मैं काम करूँ तब वो बोलते भी है कि मुझे हमें थोड़ा हेल्दी चाहिए.
बट मैं रिसेंटली शूट कर रही थी अपनी तेलुगु फिल्म के लिए, और हमारा गाना शूट हो गया था 1-1.5 महीने पहले, तो उसका पैचवर्क गाना दोबारा से शूट हुआ। तब तक मैंने थोड़ा सा पुट ऑन कर लिया क्योंकि मुझे पता था गाना खत्म हो गया, क्योंकि जब गाना शूट होना था तो आई वाज ऑन अ रिग्रेस डाइट, आई वाज वर्किंग आउट। नाउ मुझे पता है कि गाना सब शूट हो गया, ऐसा सीन होने वाला है वेयर आई बी वेयरिंग जैकेट एंड ये वो एंड ऑल, तो मेरा कोई भी बॉडी पार्ट विजिबल नहीं है। उन्होंने बोला पैचवर्क है, गाना शूट करना है। अब मुझे पता है आई एम नॉट एट ऑल लुकिंग गुड, और मैं पूरे टाइम कॉन्शियस थी कि आई एम नॉट लुकिंग गुड, थोड़ा सा फैट दिख रहा है, बिकिनी बॉडी अच्छी नहीं दिख रही है, बट दे केप्ट ऑन कन्विंसिंग मी, नो यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, यू आर लुक, बिकॉज वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, बिकॉज दे थॉट दैट लुक ब्यूटीफुल, क्योंकि उन्हें थोड़ा वॉलप्शियस चाहिए, राइट, ठीक है, उन्हें नीचे बहुत ही पतली लड़की, मतलब जो मतलब हड्डियाँ दिखे, उन्हें नहीं चाहिए वो, क्योंकि उनका वो ऑडियंस है ही नहीं, उनका ऑडियंस रिजेक्ट करेगा। मैं खुश नहीं थी, मेरा डायरेक्टर खुश था, मेरा कैमरामैन खुश था, मेरा पूरा टीम खुश था, तो आई गेव इट टू देम। वो छोटा सा सीन है, पर मैं इतनी भी बुरी नहीं लगी। अगर मैं बहुत ही बुरी लगती तो मैं आई वुड हैव नॉट वॉन्ट बिकिनी एट ऑल, मैं खुद मना करती कि मुझे बिकिनी नहीं पहनना क्योंकि मैं बहुत बेकार लग रही हूँ। बट कभी कभार होता है, यू आर केटरिंग टू अ पर्टिकुलर ऑडियंस, टू अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री, तो वहाँ पे चल जाता है। ओके, सो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और साउथ फिल्म इंडस्ट्री में डिफरेंस क्या है? देखो, मैंने इतना ज़्यादा तो काम नहीं किया है साउथ में, मैंने अब तक सिर्फ 2 ही प्रोजेक्ट किए हैं, और 2 डिफरेंट इंडस्ट्री में, एक कनाडा में और एक तेलुगु में, तो इतना भी ज़्यादा काम नहीं है कि मैं अब मतलब इसका जवाब दे सकूँ कि क्या डिफरेंस है, बट इतना मैंने देखा है, दे वेरी रिस्पेक्टफुल। मैं इस दोनों प्रोजेक्ट में दे हैव ट्रीटेड मी वेरी वेल, आई वाज टेकन केयर ऑफ, एंड वेरी स्वीट पीपल, और वो टाइम के बहुत पक्के हैं, वो अननेसेसरी तुम्हें घंटों घंटों सेट पे बिठा के रखेंगे और फिर बाद में लेट शूट करेंगे, ऐसा नहीं। वो 10 घंटा 12 घंटा करेंगे और टाटा बाय बाय बोलेंगे। तो जैसे जस्ट एज एन एक्टर आई एम इंक्विजिटिव टू नो कि जैसे हम सुनते हैं कि कॉम्प्रोमाइज, जैसे हमने बात की, तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स शी वर्क्स इन साउथ एंड शी सेज कि अश्मिता, वहाँ तो बिना कॉम्प्रोमाइज़ के आपको काम ही नहीं मिलता है। सो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वहाँ पे? देखो, शुरू में जब मैं ट्राई करी थी, बिकॉज मुझे लोग कहते थे कि यू आर अ साउथ इंडियन, ओके, यू आर ब्लेस्ड बिकॉज यू नो अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, तो तुम्हें वहाँ ट्राई करना चाहिए। बिल्कुल, मेरी इनहिबिशंस थी कि मैं वहाँ पर नहीं करना चाहती थी, बिकॉज आई एम डस्की, आई एम वेरी लीन, तो मुझे कौन लेगा, एक्टर में तो कोई नहीं लेगा, कोई कैरेक्टर रोल के लिए वगैरह लेगा। Over the period of time, then I have been associated with certain directors and producers in South, and they are open to this particular idea. ये लोग जो बोलते हैं ना कि सिर्फ कॉम्प्रोमाइज से हो सकता है कि they have encountered people जो कॉम्प्रोमाइज के लिए पूछते हैं, but then जिन लोगों से मैं मिली हूँ and they have not asked for compromise and all of that. और कुछ लोग हैं who have asked for compromise, मुझसे भी पूछा गया है, पर मैंने ये भी नोटिस किया कि वो प्रोजेक्ट्स कभी हुए ही नहीं है और ना कभी वो प्रोजेक्ट होंगे। ओके, यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है कि यार once you compromise with somebody, you're going to get a project. You've got to be smart enough. You've got to do your thorough homework कि ये compromise के लिए पूछ रहा है, इस बंदे की वर्थ है क्या, इसके प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं क्या, इसके पुराने प्रोजेक्ट्स कितने सक्सेसफुल है, कितने एक्ट्रेसेस के साथ काम किया है, कितने एक्टर्स के साथ काम किया है, इसके प्रोजेक्ट्स में ये करना वर्थ है भी या नहीं है, कितने न्यू कमर्स के साथ काम किया है, दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि कितने लोगों को काम दिया है, लॉन्च किया है। यार तुम एक्टर हो तो इसका मतलब ये नहीं तुम रिसर्च नहीं कर सकते, बिकॉज आई कम ऑफ अ बैकग्राउंड वेयर जहाँ पे मैं रिसर्च करके काम करती थी। कॉर्पोरेट में किसी भी तरह में किसी भी कंपनी को अगर तुम अप्रोच कर रहे हो या फिर अपना कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो यू हैव टू डू अ थरो रिसर्च, राइट, और वो एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, तो वहाँ पे ना रिसर्च पेपर्स अवेलेबल है। एक ऐसी कंपनियां होती है जो सिर्फ रिसर्च प्रोवाइड करती है, बिल्कुल, जाओ सब्सक्राइब करो, पैसे दो, वो तुमको अपना पूरा का पूरा रिसर्च देगी, जिससे तुमको पूरा क्लियर हो जाएगा कि भाई इस कंपनी को परस्यू करना है कि नहीं करना है, ये प्रोडक्ट को बेचना है कि नहीं बेचना है। हमारी इंडस्ट्री में हमें ही स्मार्ट होना पड़ेगा, हमें, हमारे पास गूगल है, हमारे पास इंस्टाग्राम है, हमारे पास एक्सेस है, कुछ लोगों का पूछ लो, गूगल कर लो, देख लो कि वर्थ है कि नहीं वर्थ है। कॉम्प्रोमाइज तो हर कोई पूछेगा यार, मतलब अगर तुम देने के लिए रेडी हो तो लेने के लिए कोई क्यों रेडी नहीं होगा। बात वही है, क्योंकि जब मैं लोगों से मिलने जाती हूँ ना, जो मेरे अच्छे दोस्त हैं, एंड बिकॉज आई स्पीक लॉजिक, they open up to me, and that's the reason they're friends with me, and they tell me, वो दिखा दे यार अक्षय, देखना यार सुबह से इसके मैसेजेस आ रहे हैं यार, वो मैसेजेस पे क्या आ रहे हैं, अपना कोई सेक्सी पिक्चर भेजे, उसके नीचे गुड मॉर्निंग, तो सीधे गुड मॉर्निंग नहीं लिख सकती
तुम अपना पिक्चर भेजना उसके नीचे गुड मॉर्निंग, तो तुम भी तो ऑफर कर रही हो ना। हाँ। फिर बाद में बोलते यार ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया, देखना मुझे मिलने के लिए बुला रहा है, इसके दिमाग में गंद भरा है। गंद डाला तुमने, बिल्कुल तुमने गंद, तुम्हें पता है कि वो तुम्हें उसी नजर से देखता है, मिलना बंद कर दो उससे। हाँ बिल्कुल, अवॉइड मत काम करो उसके साथ। बिल्कुल। अपने क्राफ्ट पे काम करो, थिएटर ज्वाइन करो, वर्कशॉप ज्वाइन करो, ऑडिशंस दो रोज। तुम्हें देना नहीं है ऑडिशन, हाँ तुम्हें मेहनत करनी नहीं है, वही ना, शॉर्टकट लेना है, तुम्हें शॉर्टकट लेना है। यस, तुम्हें भी थोड़ा ऐसे करना है। तो फिर तुम अगर जब ऐसे करोगी तो सामने वाला देखेगा ही ना। मेरे पास भी आते हैं, मेरे पास भी आते हैं, और यही रीजन बोलते हैं तुम्हारा इंस्टाग्राम तो बोल रही हो वेरी सेक्सी, ओह माय गॉड यू आर अ डस्की दीवा, देखना कुछ होता है। तो मुझे क्या होता है, क्या होता है, मैंने क्या दिखाया तुमको? तुमने इंस्टाग्राम पे मेरी पिक्चर देख के जो परसेप्शन बनाया, यहाँ पे तो मैं कुर्ता पहन कर आई हूँ ना तुम्हारे सामने, क्या दिख रहा है तुम्हें? मैं बोल देती हूँ। इट ruins my relationship sometime and sometimes it just gives me clarity। या सामने वाला बंदा सहम जाता है, सॉरी बोलता है हाय तौबा, इससे तो दोबारा नहीं मिलूंगा, हाय तौबा, मतलब इंटेंशन क्लियर हो गए। Exactly। कि तुम्हें तो कभी मुझे काम देना ही नहीं था, यू जस्ट वांटेड टू गेट इनटू माय पैंट्स, ठीक है, वो क्लियर हो गया। अब जिसने बोले आई एम सो सॉरी यार, तुमने गलत समझ लिया, मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था, मैं तुम्हें एक कैरेक्टर पे देख रहा था ऐसे, अच्छा ठीक है चलो तुम्हें ये सारी बातें पसंद नहीं है, अगली बार से मैं ये बात नहीं करूंगा, आई एम वेरी श्योर कि तुम्हें ये चीजें पसंद है, हम दोस्त हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, चलो तुमने मान ली अपनी ये बात, और मुझसे माफी मांगी, और तुमने कहा कि तुम नहीं करोगे, राइट, तुम्हारी ईमानदारी मुझे वहां पर दिखी। हाँ। या फिर किसी ने बोल दिया यार तुम एनकरेज नहीं करती हो यार, ऐसा सारा कॉन्वर्सेशन कैसे होगा यार बेसिकली, ठीक है। हाँ। अभी अगर तुम मान ही नहीं रही हो मेरी बात तो कैसे काम करेंगे? तो मैं बोले सर तो नहीं हो पाएगा यार, तो छोड़ो, तो टाटा बाय। टाटा बाय, उसने भी बोल दिया, मैंने भी बोल दिया, टाटा बाय बाय, क्लियर, खत्म। ठीक है ना, सही बात है। बोल के तो देखो। और मैंने किया है ये, मैंने सेट पे भी किया है ये। सेट पे भी जहाँ पर मुझे लगा है कि थिंग्स आर गोइंग इनटू अ डिफरेंट डायरेक्शन, आई हैव स्टूड अप फॉर माई सेल्फ। गुड, ओके। और जहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि इसको ना टाल सकते हैं, बट यू कैन स्टिल बी इन गुड बुक्स ऑफ दैट पर्सन, और यू कैन मेंटेन अ रिलेशनशिप विद दैट पर्सन विदाउट इवन मेकिंग हिम फील बैड अबाउट इट, मैंने वो भी किया है। तुम हर किसी से दुश्मनी नहीं बोल सकते यार, of course not। तुम हर किसी से दुश्मनी नहीं बोल सकते। अगर तुम्हें पता है सामने वाले इंसान में गंद है, ट्राई एंड सी कि तुम उसको कैसे डाइवर्ट कर सकते हो यार, कैसे उसको दोस्त बना सकते हो, उसको क्लियर करो कि तुम मुझसे तो नहीं मिलने वाला, मुझे नहीं इंटरेस्ट है तुम्हें, तुम बता दो दोस्ती में इंटरेस्ट है, काम में इंटरेस्ट है, ऑडिशन ले लो, एक ऑडिशन ले लो। अगर तुम्हें लगता है कि ऑडिशन में मैंने क्लियर कर लिया, तुम ये रोल मुझे दे सकते हो, तो प्लीज कंसिडर करना, वरना मेरी शक्ल मत देखना। वैसे भी जो तुम्हें चाहिए वो मैं दे नहीं सकती। मैंने ये किया है और मैंने दिया है ऑडिशन, और मैंने क्रैक भी किया है। हाँ, सहम जाएगा आगे वाला। सो ऐसे आई थिंक अभी वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर इंटरव्यू, बट वन थिंग आई वांट टू आस्क यू, ऐसा कोई एक डायरेक्टर या ऐसा कोई एक एक्टर आप मुझे बताइए जिसके साथ आपको काम करना है फ्यूचर में, चाहे वो साउथ का हो, चाहे वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का हो, एनी वन डायरेक्टर एंड वन एक्टर। देखो वैसे तो मुझे सारे डायरेक्टर्स के साथ काम करना है, मुझे सारे एक्टर्स के साथ काम करना है, ठीक है, मैं ऐसे तो नहीं बोलूँगी, बट जो एक डायरेक्टर है जिसके साथ मुझे काम करना है वो है अनुराग कश्यप। ओके, उसकी दो वजह है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अनुराग कश्यप खुद अभी कुछ डायरेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि भाई बहुत माथापच्ची वाला काम है, वो सब जगह पे इंटरव्यूज दे के आ रहे हैं कि मतलब कितना स्ट्रगल है डायरेक्शन में, एंड ही इज डूइंग ब्रिलियंट एज एन एक्टर। वो एक्टर बनने ही आए थे, वो डायरेक्टर बन गए। और जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी, ठीक है, जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मुझे मिला था वो था नेटफ्लिक्स का सीक्रेट गेम्स। वाओ। और तब नेटफ्लिक्स नहीं था इंडिया में, आई डिडंट इवन नो व्हाट नेटफ्लिक्स इज। हम लोग जो सेट्स में जो एक्टर्स थे ना, वो क्या नेटफ्लिक्स, क्या हमें पता नहीं था नेटफ्लिक्स क्या था, ठीक है। मैं गूगल करती थी व्हाट इज अमेज़न, व्हाट इज नेटफ्लिक्स, व्हाट इज ओटीटी मीन, ये चैनल है, ये टीवी है, ये क्या है, इसका मीनिंग नहीं पता था। एंड दैट वाज सीक्रेट गेम सीजन 1, ओके, एंड फॉर अ सीन आई वाज डायरेक्टेड बाय अनुराग कश्यप, ओके, एंड इट वाज अ सीन व्हिच वाज इंटिमेट, ओके, सो ही हैड 2 असिस्टेंट डायरेक्टर्स ऑफ हिज, ओके, वो बाहर रहे कमरे के, उन्होंने उनको बोला कि ये 2 तुम्हारे साथ रहेंगी अंदर, जब ये सीन चल रहा होगा मैं बाहर रहूँगा। मैंने अपना मॉनिटर भी एक अलग रूम में रखा हुआ है जहाँ पे सिर्फ मैं और कैमरा मैन है, बाकी पूरा सेट कोई देख नहीं सकता।
ओके उतनी अच्छी तरह से उन्होंने शूट किया था, बट फॉर सम रीजंस ओके मैं स्क्रीन पे आई नहीं, वो पूरा का पूरा कैरेक्टर वाज किल्ड ओके। और इसी शूट के जो मैंने तुम्हें एक्सपीरियंस बताया, वो बोलते हैं कि आप नेकेड फोटो भेजो क्योंकि हमें बॉडी पे टैटू नहीं चाहिए, बर्थ मार्क्स नहीं चाहिए, हाँ. ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, हाँ. आप फोटो भेजो। इसी के ऑडिशन के दौरान मैंने मना किया था इस चीज़ के लिए, क्योंकि उन्हें ऐसा कोई सीन करना था, जबकि सीन वैसा तो नेकेड तो हुआ नहीं था सीन, बट जो कास्टिंग के पास ये जो आया था ना, तो कास्टिंग ने जिस कोऑर्डिनेटर को ये रिक्वायरमेंट भेजा था, उसने तो फुल अय्याशी की। उसने ऐसे ना ऑडिशंस रखे, लोगों से पिक्चर्स मंगवाए, और जब मैंने उससे पूछा कि तुम ऐसे क्यों पिक्चर्स मंगा रहे हो, आई सेंड यू माय बिकिनी पिक्चर, बिकिनी का जितना जो बॉडी दिखता है उतना ही दिखता है, आगे पीछे कुछ नहीं चाहिए तुम्हें, जो चीज कवर होनी चाहिए बिकिनी में कवर हो रहा है, बाकी बॉडी दिख रहा है। तो लेकिन हमने ना पहले कोई दूसरी लड़की को कास्ट की थी, जब वो सेट पे आई ना तो उसके बॉडी पे फुल टैटू ही टैटू थे, तो मेकअप आर्टिस्ट को ना हाइड करने में ना बहुत टाइम लग जाता था और बहुत डिफिकल्ट होती। फोटो में तो हम फिर भी फोटोशॉप कर सकते, वीडियो में नहीं कर सकते। मैंने कहा तुम कुछ भी कर लो, मैं ये तो नहीं भेजने वाली, बिकिनी के पिक्चर्स देख लो, बिकिनी के पिक्चर्स जितने तुम्हें दिखेंगे उतने ठीक है। और मेरा सिलेक्शन हुआ भी, मैडम के साथ मेरा प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट पे साइन हुआ। ओके और काम भी किया मैंने। वेरी गुड। सो आपकी अभी एक फिल्म रिलीज हुई है राइट, दंगे, इट्स ऑन नेटफ्लिक्स आल्सो। या सो अभी फाइनली आप नेटफ्लिक्स पे आ गए। हाँ मैं आ गई फाइनली नेटफ्लिक्स पे, पर मुझे कुछ बड़ा करना है, मतलब एस्पिरेशन एज एन एक्टर इज ऑलवेज टू डू समथिंग बिग राइट, कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट करूँ कि आई एम द फेस ऑफ द प्रोजेक्ट और आई एम एटलीस्ट अ वेरी प्रोमिनेंट कैरेक्टर इन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट है इट्स अवेलेबल इन हिंदी एज वेल एज इन तमिल बिकॉज इट वाज अ बाइलिंगुअल मूवी, एंड आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू प्ले द सेम कैरेक्टर इन हिंदी एज वेल एज इन तमिल बिकॉज कास्ट बिल्कुल अलग है, तमिल की कास्ट पूरी अलग है और हिंदी की कास्ट अलग है, which is directed by Bijoy Nambiar. So yeah, it was a very wonderful experience. But मैं वही चाहती हूँ कि मतलब और कुछ बड़ा है, डेफिनेटली कुछ और बड़ा है, कुछ अच्छा है। तो हाँ, and coming back to your question, Anurag Kashyap for those two reasons, to have his faith back into direction, and जो मैंने किया था जो आधा अधूरा रह गया वो दोबारा से full fledged एक बार हो उनके साथ। होगा, डेफिनेटली होगा। And I really want that आपका जो टैलेंट है, आपका जो you aspire to do big in life, वो बहुत जल्दी फुलफिल हो। ऑप्शन ही नहीं है कोई दूसरा। Exactly, there is no plan B, I think. There is no plan B. I think so. I already had a plan A, and this became a plan B. Exactly. So now there couldn't be a plan C or a plan D after this. A या B होता, ज़्यादा नाव में नहीं तैरना चाहिए। So Akshaya, thank you so much for being a part of this show. I'm so happy to have you here with me, and this conversation went amazing, very insightful. Yeah, I kind of forgot there are cameras around. I think so. We got so chatty, and I just happened to just say so many things unfiltered, which I would have probably thought a lot before saying. Yes, but that's what you are, unfiltered. Yeah, I just go with the flow. Like थोड़ा सा overwhelming हो जाता है मेरे लिए. No, but I loved because I think so. ये वो चीजें हैं जो हम as actors, as co-actors, as friends ये बात करते हैं. Yes. But this time around we're talking it in an open forum. Exactly. And people should know that. People should know that. So thank you so much, Akshaya. Thank you so much for having me here. Absolutely. Pleasure is ours. फिल्मों की ताजा खबरें क्यों मिस करना? अभी सब्सक्राइब करो इंडियन फिल्म हिस्ट्री और अंदर की बातें जानो। बॉलीवुड की दुनिया का टिकट बस एक क्लिक दूर। बॉलीवुड के बिना रह नहीं सकते? फिल्मी शॉर्ट्स ऐप डाउनलोड करें और चलते फिरते मनोरंजन का मजा लें। झटपट, चटपटी और पूरी बॉलीवुड वाली खबरें। फिल्मी शॉर्ट्स ऐप iOS और एंड्रॉइड दोनों पर मौजूद है। एंटरटेनमेंट की दुनिया में चांस पाने का एक आसान तरीका। फिल्मी जॉब्स ऐप अभी डाउनलोड करें और बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखें। अवेलेबल फॉर iOS एंड एंड्रॉइड डिवाइसेस, प्लीज डाउनलोड फिल्मी जॉब्स ऐप।